Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video for the revision of Class 8 CBSE Maths for Term 2. The video covers various chapters and problems from the INSERT syllabus. This resource is especially helpful for students who are preparing for their upcoming exams and need a quick revision of the key concepts. The video provides clear and concise explanations of important topics, along with solved examples to help students understand the application of different mathematical concepts. By watching this video, students can reinforce their understanding of topics such as rational numbers, algebraic expressions, linear equations, quadrilaterals, and practical geometry. Additionally, the video also includes tips and tricks for solving problems quickly and accurately, which can be beneficial for students during their exams. Overall, the Class 8 CBSE Maths Revision CERT video by Ignited Minds Tutorials is an excellent resource for students to strengthen their mathematical skills and feel more confident in their preparation for the Term 2 exams. Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video for the revision of Class 8 CBSE Maths for Term 2. The video covers various chapters and problems from the INSERT syllabus. This resource is especially helpful for students who are preparing for their upcoming exams and need a quick revision of the key concepts. The video provides clear and concise explanations of important topics, along with solved examples to help students understand the application of different mathematical concepts. By watching this video, students can reinforce their understanding of topics such as rational numbers, algebraic expressions, linear equations, quadrilaterals, and practical geometry. Additionally, the video also includes tips and tricks for solving problems quickly and accurately, which can be beneficial for students during their exams. Overall, the Class 8 CBSE Maths Revision CERT video by Ignited Minds Tutorials is an excellent resource for students to strengthen their mathematical skills and feel more confident in their preparation for the Term 2 exams. Question number 20, you know? Okay. So we'll be doing revisions. कौन सा question number 20? 20 तक पहुंच गया भाई साहब इतने सारे सवालों में. वाओ. ओके तो भाई साहब ने पूछा है 20 नंबर सवाल. What will be the compound interest on ₹4,000 in 2 years when rate of interest is 5% per annum? तो आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है. What is compound interest? ठीक है. n यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 और on ₹4,000 ₹4,000 ठीक है. और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%. ठीक है. तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा बोलो. What is going to be the amount? Amount is P into 1 plus R by 100 raised to number of terms. ठीक है. नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे भाई साहब कितना है 2 है. ठीक है. सो दैट विल बी हाउ मच. P हो गया आपका 4,000 1 plus R by 100 that is 5 by 100 raised to 2. 5 ones are 5, 5 20s are 100. So that will be how much? ₹4,000 1 plus 1 by 20 raised to 2. So ये हो गया कितना आपका ₹4,000 21 by 20 raised to 2. ₹4,000 into 21 by 20 into 21 by 20. ठीक है. क्लियर है. ये कैंसिल 2 20s are 40. इधर देखेंगे जरा भाई साहब जब सवाल डिस्कस हो रहा है सबके लिए हो रहा है ना. 2 10s are 20. यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 21 into 21 that is 441 और ये हो गया आपका 0.
तो ये हो गया आपका अमाउंट, ठीक है। पूछा है आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज हाउ मच, अमाउंट इज 4410 minus principal, that is how much, rupees 4000. So that's going to be how much, rupees 410. ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर? अब और कोई सवाल, हम जल्दी 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 फटाफट फटाफट जल्दी पूछिए पीपल। केपीसी, ना रे तू बता ना, नंबर बता, केपीसी का क्या, केपीसी का 7 ना भाई साहब, ओके ओके ओके। केपीसी की तो चला गया भाई साहब, हाँ ये वाला, ये तो 29 का है, ये भी 29 का है, गायब कैसे हो गया यार। अरे यार 31 केपीसी क्यों नहीं डाउनलोड हुआ यार। डिलीट कैसे हो गया वैसे ये अपने आप। कौन सा है, ओके ये वाला सवाल करते हैं भाई साहब। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज हाफ, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा अगर इसका एज को हाफ कर दिया गया है, ठीक है। सो आपका कोई क्यूब है, ठीक है, अभी समझ लो भाई साहब ये आपका है क्यूब, लेट्स से दिस इज बेसिकली अ क्यूब, और इस क्यूब का लेट्स से साइड है ए, ठीक है। तो इनिशियली let the edge of the cube, let the edge of the cube be a, so therefore आपका initial volume कितना हो जाएगा भाई साहब, what will be the initial volume, that will be a cube, है कि नहीं। इनिशियल वॉल्यूम कितना हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। अभी आपने क्या कर दिया, इसका भाई साहब एक छोटा वर्जन निकाला, ठीक है, इसका सब एज आपने हाफ कर दिया, ठीक है। छोटा वर्जन मतलब इतने आपने अभी क्या कर दिया आपका, therefore न्यू एज ऑफ द क्यूब, न्यू एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू a बाई 2, है कि नहीं, हाफ कर दिया है, तो इसका न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, न्यू वॉल्यूम विल बी हाउ मच आ पीपल, दिस विल बी a बाई 2 का क्यूब, दैट इज हाउ मच, दैट इज हाउ मच, a बाई a क्यूब बाई 8 है ना, a क्यूब, ए क्यूब क्या है भाई साहब आपका इनिशियल वॉल्यूम, है ना। सो देयरफॉर न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/8 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम भी 1/8 हो जाएगा, वॉल्यूम बिकम्स, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर volume becomes 1/8 of the initial volume, volume becomes 1/8 of the initial volume, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए और क्या फटाफट बताइए, और कोई डाउट पीपल, हम और कोई डाउट, केबीसी
उधर कहीं पे रख दो ना इसको। शुभम क्या कर रहा है तू, इसको रखना जरा अपने पास, सप्लीमेंट है। ओके हाँ, कौन सा है केपीसी 15? इसी में है ना? हाँ ये वाला। ओके यहां पे भाई साहब आपका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। 2x², या सब ध्यान देंगे जरा, ये मेरा नहीं है वो नहीं है, ये सब नहीं, जो पढ़ाया गया उस पर ये सवाल, ठीक है। 2x² माइनस 17x माइनस 30, ठीक है। क्या करेंगे अपन इसको फैक्टराइज करने के लिए? 30 इंटू 2, बोल रहा हूं इधर ध्यान देने के लिए, पता नहीं तो क्या कुदर कुदर किया जा रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे? 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा भाई साहब? 30 इंटू 2 दैट इज 60। अभी 60 के फैक्टर्स में से आपको ऐसा कुछ निकालना है जिसका प्लस या माइनस आपको दे दे 17, ठीक है। तो 2 इंटू 30 नहीं होगा, ठीक है। 3 इंटू, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसा कर लो भाई साहब, 2 30 जा 60, 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। क्लियर है? अभी कर लो भाई साहब, इनमें से तुमको क्या चाहिए? 17 चाहिए। कहीं पे कोई तकड़म बन रहा है? देखो 5 3 जा 15 और यहाँ पे तो हो गया 4, नहीं होगा भाई साहब, ठीक है। 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, 10 और 6 ये भी नहीं हो रहा है भाई साहब। और कुछ? 2 30 2 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, हाँ ये हो सकता है। देखो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो 20 इंटू 3 तुमको 60 मिल रहा है ना। और 20 माइनस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 17, है कि नहीं? ये बीच वाला नंबर आ जाएगा। लेकिन तुमको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि माइनस में है, ये माइनस में है तो यहाँ पे बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए और छोटा वाला प्लस में। तो माइनस 20x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 17x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं अपन 2x² माइनस 20x प्लस 3x, ठीक है। 3x माइनस 30, ठीक है। क्लियर है? अपन कर लेंगे भाई साहब इसको, यहाँ से 2 कॉमन निकाला, 2 और x कॉमन निकाला, क्या बचेगा यहाँ पे? x माइनस 10। यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, x माइनस 10, तो इधर बच गया आपका x माइनस 10 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। दिस इज बेसिकली फैक्टराइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और बोलो भाई साहब, और बोलो फटाफट। 17 रेवेनार, तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इतना इफ द एनुअल बर्थ रेट एंड द डेथ रेट आर दिस मच। एनुअल बर्थ रेट है ये और ये डेथ रेट है। हाय हाउ आर यू? एनुअल बर्थ रेट है ये 5.5%, ठीक है, और ये डेथ रेट है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 3 इयर्स। तो मानूंगा ना एक, तो इसका मतलब आपको पॉपुलेशन पूछा है कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई साहब इसको अपन? देखो यहाँ पे 5.5 आपका बर्थ रेट है, मतलब आपका डेवलप, देखो 5 लोग मरे, सॉरी 5 लोग पैदा हुए, 3 लोग मरे, तो कितने लोग बचे रह गए? 2 लोग, तो यही पॉपुलेशन में ऐड होगा, है ना। तो एनुअल बर्थ रेट कितना है भाई साहब आपका? एनुअल बर्थ रेट ये कितना है भाई साहब आपका? 5.5%, है ना, ठीक है। और एनुअल डेथ रेट ये कितना है भाई साहब आपका? एनुअल डेथ रेट ये भाई साहब कितना है? 3.5%, ठीक है। तो व्हाट विल बी द एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? दिस माइनस दिस, जितने पैदा हुए और उसमें से जितने मरे वो माइनस होंगे ना भाई साहब, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 5.5% माइनस 3.5%, दैट विल बी हाउ मच? 2%, ठीक है। आपसे पूछा है भाई साहब 3 साल बाद क्या पॉपुलेशन होगी।
सो अमाउंट क्या हो जाती है भाई साहब, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और यहाँ पे एन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, पी आपका यहाँ पे कितना है, पी आपका है भाई साहब 125, यहाँ पे रुपीज मत लिख देना, 125000, सो दैट्स गोइंग टू बी 125001 प्लस आर बाई 100, आर बाई 100 दैट इज 2/100, 2/100 एंड रेज टू एन दैट इज 3, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 125000 इंटू, ये हो गया 2 और ये हो गया 50, दैट विल बी 1 प्लस 1/50 रेज टू 3, ठीक है। सो दैट विल बी 125000 और यहाँ पे हो गया भाई साहब 51/50, 51/50 रेज टू 3, ठीक है, क्लियर है। सो दैट विल बी हाउ मच, 125000 इंटू 51/50 इंटू 51/50 इंटू 51/50, ठीक है। ये एक जीरो कैंसिल, 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 525 जा 525 जा 5 जा, अभी करो भाई साहब 51 इंटू 51 करो जरा फटाफट, 51 इंटू 51, ये हो गया 1, 5 1 जा 5, ये हो गया 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 1 5 प्लस 5 10, 2601 हो गया। इंटू करना है भाई साहब तुमको, यहाँ पे 51 इंटू 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 260, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक 5 बच रहा है ना भाई साहब, 5 5 जा 25, 25 नहीं बचना चाहिए यार, 5 5 जा 25 कट जाएगा ना, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25 होता है, 25 5 जा 125 होता है, तो ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो अपना यहाँ पे आएगा 2601 इंटू 51, ठीक है, 2601 इंटू 51, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2601 इंटू 5 1 जा 5, 0 5 जा 0, 6 5 जा 30, 5 2 जा 10 और प्लस 3 13, 1 5 6 2 3 1, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज दिस, सॉरी रुपीज नहीं होगा, टोटल पॉपुलेशन इज हाउ मच, 1326151, दैट इज द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कैलकुलेट, देयरफॉर पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, पॉपुलेशन आफ्टर, population after 3 years, this is going to be how much, 132651, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है विप्लम, ओके ओके ओके, चलो भाई साहब और कुछ, हाँ अरे यार फिर क्यों भाग गया, केपीसी का बार बार क्यों उड़ जा रहा है यार, फिर कैसे उड़ गया ये, ओह
कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्या अपना स्कूल ही भूल गया तू भाई साहब, बहुत बढ़िया। कौन सा है? 12। Okay, Rima weaves 35 baskets in 25 days. In how many days will she weave 55 baskets? ठीक है, तो बास्केट बना रही है ये, ठीक है। रीमा weaves 35 baskets in 25 days, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? 35 baskets in 25 days। तो रीमा weaves 35 baskets in 25 days, ठीक है। तो भाई साहब रीमा वीव्स 1 बास्केट, एक बास्केट कितने दिन में करेगी भाई साहब? इन 25 बाई 35 डेज, है कि नहीं? ठीक है। सो रीमा वीव्स 55 बास्केट्स इन कितने दिन में करेगी भाई साहब? 25 बाई 35 इंटू 55 डेज, ठीक है। क्लियर हम भाई साहब। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 बास्केट्स इन, कुछ कट्टम कुट्टम नहीं हो रहा है यहाँ पे भाई साहब। 55 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 26 27, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 2 7 5, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 7 से 1 गया 6, 7 9 ज़ा 63, 63, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 39 पॉइंट, ये 7 अप्रॉक्सीमेटली ये कितना आ जाएगा? 2। तो 39.2 डेज तो नहीं हो सकता ना, तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? 39 डेज, सॉरी 40 डेज, ठीक है। 40 दिनों में वो कितना बना लेगी? 55 बास्केट्स बना लेगी, ठीक है। चलो भाई साहब, और कोई फटाफट। एनीवन एल्स? जल्दी जल्दी कीजिए, तरफ फटाफट। 16 वाला क्वेश्चन ना एमएनआर का। ये वाला ना, 2x + 5, ये वाला। ओके, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। 2x + 5/3 = 3x - 10 है, ठीक है। ये डिवीजन मोड में है, जो भी डिवीजन मोड में है अगर उसको इधर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन मोड में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 2x + 5 = 3 × 3x - 10, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा बोलो? 2x + 5 = 9x - 30, ठीक है। इसको अगर अपन इधर लाएंगे तो ये प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2x - 9x, यहाँ पे कितना है बोलो? -30 - 5, 2x - 9x, 2 - 9 कितना हो जाएगा आपका? -7। सो दैट विल बी -7x = -35, ठीक है। क्लियर है? सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -35 अपॉन -7, कैंसिल 7 5 ज़ा 35। सो देयरफॉर x की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 5। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। चलिए दूसरा सवाल फटाफट। कौन सा? 10th वाला।
ये किया तो था अभी, what will be the happen to the volume of a cube if its h is half, अभी किया, नहीं अभी किया है मैंने, ये आज ही किया है भाई साहब, यही वाला पूछा ना, ये अभी किया है, पहला वाला सवाल वही था, कौन सा NHPS का, ये क्या इजी तो है ये, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज दिस मच, सबसे इजी है ये तो कुछ करना ही नहीं है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड करना है भाई साहब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, यहाँ पे कितना है 25 मिलीमीटर का भाई साहब क्यूब, ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच 25 इंटू 25 इंटू 25 मिलीमीटर क्यूब, 625 इंटू 25 कर लो भाई साहब, कितना आएगा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 6 5 ज़ा 30 31, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 1 5, 6 2 ज़ा 12, तो गया 5 2 6 5 1, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 15625 मिलीमीटर क्यूबिक, ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब क्या वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्लियर हम पीपलम, आर बी क्लियर ऑन दिस वनम, ठीक है, चलो भाई साहब चलो फटाफट फटाफट फटाफट, क्यूब 1.5 क्या वॉल्यूम निकालना 1.9 इसमें 25 मतलब 1.5 तो कर, क्या दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, हाँ तो करना 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, अरे भाई साहब अगर 1.5 दिया रहेगा एज ऑफ द क्यूब तो कितना हो जाएगा, एज अगर दिया हुआ है 1.5 क्या है, मीटर है सेंटीमीटर है क्या है, डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, तो देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डेसीमीटर क्यूबिक, 1.5 इंटू 1.5 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 15 15 जा 225 होता है, 225 इंटू 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 5 2 जा 10 1 11, ये हो गया भाई साहब आपका 225, 5 7 3 3, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 33.75, एक चीज यहाँ पे याद रखो कि 1 डेसीमीटर क्यूबिक, अरे मिस्टर सावंत इधर ध्यान दीजिए, क्या हाँ 3 डॉट हो जाएगा भाई साहब, सो दिस विल बी 3.375, ठीक है 3.375 डेसीमीटर क्यूबिक, 1 डेसीमीटर क्यूबिक कितना होता है, 1 डेसीमीटर क्यूबिक 1 लीटर के बराबर होता है, तो इसको अपन 3.375 लीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी डन एज लीटर एज वेल, क्लियर है, चलो 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 फटाफट फटाफट, इलेवेंथ सेमिनार, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, कितने साइड्स का है भाई साहब, ठीक है 12 साइड्स का है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सारे इंटीरियर एंगल्स का अगर हम सम करेंगे वो कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब आपका, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, इसका फॉर्मूला भाई साहब क्या होता है, पॉलीगॉन है इसका फॉर्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है,
अभी एक्सटीरियर एंगल समझना है तो ऐसे समझ लो, देखो ये समझ लो एक कोई पॉलीगॉन है, ये आपका कोई पॉलीगॉन है, पेंटागन है, बेसिकली रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये सब बराबर होगा। यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, देखो अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अगर मैंने भाई साहब इसको एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, इसको एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब एक्सटीरियर एंगल। ये सारे आपके एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ये सारे आपके हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। इन सारे एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 2n - 4 राइट एंगल्स, ठीक है। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड्स, ठीक है। तो पहली बात तो अगर 12 साइड्स हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पहले निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो जो इंटीरियर एंगल होगा वो ये वाला एंगल है, ये वाला भाई साहब आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन, द गिवन पॉलीगॉन, ये कितना हो जाएगा बोलो, गिवन पॉलीगॉन ये कितना है भाई साहब, यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना है 12, तो इसको कर लो भाई साहब 2 × 12 - 4 × 90, ये होगा, है ना। मतलब यहाँ पे 12 साइड्स हैं, 12 साइड्स के एक्सटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो इतना वैल्यू आएगा। तो मतलब एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ वन एंगल, वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल भाई साहब कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 12 2 24, 24 - 4 कितना हो गया 20, 20 × 90, कितने एंगल्स थे आपके 12, तो एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी अपॉन 12, है कि नहीं, ठीक है। सो 2 10 = 20, 2 6 = 12, 2 3 = 6, सॉरी 2 5 = 10, 2 3 = 6, 3 30, 30 × 5 कितना हो गया भाई साहब 150। तो मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो गई 150, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर इंटीरियर एंगल का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 180 - 150, दैट इज इक्वल टू 30, ठीक है। अभी कितने ऐसे इंटीरियर एंगल्स बनेंगे 12, ठीक है। तो 3 × 30 करेंगे, देयरफॉर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, this will be equal to how much, 12 × 30, this will be 360। एक्चुअली में जितने भी इंटीरियर एंगल्स को आप ऐड करेंगे उसका वैल्यू हमेशा 360 आएगा। अब इसको ऐसे हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स दिस विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम और बताइए भाई साहब फटाफट फटाफट, अरे जल्दी बताना है। हाँ किसका, ये रेडियाई ऑफ सिलेंडर, ये तो उस दिन किया था मैंने। yes. Okay, radii of two cylinders are in the ratio of 2:3 and their heights are in the ratio of 5:3, ठीक है। तो सिलेंडर 1 ये हो गया भाई साहब सिलेंडर 1, लेट्स से ये हो गया आपका सिलेंडर 2, ठीक है। हम यहाँ पे मान देते हैं रेडियस और यहाँ पे मान लेते हैं हाइट, ठीक है। तो लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 भी, यहाँ पे 2 दिया हुआ ना, 2r, ठीक है। तो सिलेंडर 2 का भाई साहब क्या हो जाएगा 3r हो जाएगा, है कि नहीं। हमने माना लेट हाइट ऑफ सिलेंडर 1 भी 5h, कौन सा भाई साहब 5h, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 2 इज हाउ मच, कितना हो जाएगा 3h, 3h, है कि नहीं। क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल हम, ठीक है ओके।
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरियाज। अभी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच। सो दैट विल बी हाउ मच? 2 पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2r, और एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5h। ठीक है, तो रेशियो आपका सिलेंडर वन का ये हो गया कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, तो अगर हम करते हैं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन अपॉन 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 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू, ये कितना हो जाएगा बोलो? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वन दैट इज 2 पाई, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2r, और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3r। ठीक है, यहाँ पे सिलेंडर टू का भाई साहब कितना हो जाएगा? 2 पाई, r की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है? सॉरी, हाँ 3r, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे आया आपका हो जाएगा 2r इंटू 5h, है ना? 5h यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 3r इंटू 3h। ठीक है, क्लियर है? तो ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, r और r कैंसिल, h और h कैंसिल। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? 2 5 10 is to 9। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज दैट इज इक्वल टू 10 is to 9। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब दूसरा 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 फटाफट फटाफट। ओके, यहां पे देखो एक्स क्यूब माइनस 64 है। 64 किसका क्यूब हो जाएगा? 4 का। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स होल क्यूब माइनस 4 होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है बच्चा बाड़ी? बोलिए बोलिए। हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होगा? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी एक्स माइनस 4। ठीक है, एक्स माइनस 4, यहाँ पे ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 4 दैट इज 4x प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, ये हो जाएगा। समझम समझम समझम। चलिए आगे बताइए भाई साहब, फटाफट फटाफट। कौन सा? Sonal attended a school on 204 days in a full year. If her attendance is 85%, find the number of days on which the school was opened. ठीक है, तो let's say यहाँ पे number of days for which the school was open be x। ठीक है, नंबर ऑफ डेज फॉर विच द स्कूल वाज ओपन वाज x। तो अभी 85% अटेंडेंस है, मतलब 85 बाई 100 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204 आ जाएगी नहीं? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 85% ऑफ द टोटल डेज दैट द स्कूल वाज ओपन दैट विल गिव यू हाउ मच? 204। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 1 जा 5, 17 जा 5, 20 जा 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 204 इंटू 20 बाई 17। ठीक है, 17 1 जा 17,
यहाँ पे कितना बचा भाई साहब? 17 2 ज़ा 34, 12 2 ज़ा 240। तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 240। तो अपन क्या बोलेंगे? देयर फॉर द नंबर ऑफ डेज for which the school was open, for which the school was open is 240। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलिए भाई साहब, फटाक से फटाक से। हो गया, डन डन डन।